हाँ, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स स्टार्ट करेंगे। हाँ, डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? डेरिवेटिव इट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व। अगर हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे एंड you have to draw the tangent to the given curve, slope of the tangent it is nothing but derivative. Clear? Means a geometrical interpretation of the derivative is slope of the tangent to the given curve. Our first type is application of derivative to tangent and normal. There are the various types: derivative as the rate measure, then approximation, Rolle's theorem and Lagrange's mean value theorem, increasing and decreasing function, maxima and minima. Clear? Then what is the tangent? How to find out the tangent? Suppose y is equal to f of x, function is given, then you have to find out the derivative dy by dx at that particular point x1 y1. F dash of x at x1 y1 represent the slope. It is also called as the gradient, means a tangent to the curve at point p x1 y1. Then तो ये फार्मूला लिखना है dy by dx dy by dx at point x1 y1 is equal to f dash of x x1 y1 represent slope gradient of the tangent to the curve at point p x1 y1. तो मुझे नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो नॉर्मल क्या आएगा? नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. क्लियर? Then slope of the normal at point P will be the negative reciprocal. तो पहले क्या करेंगे? टेंजेंट इट इज नथिंग बट क्या? स्लोप. जो डेरिवेटिव आएगा उसको हम m कंसिडर करेंगे. अगर नॉर्मल का स्लोप कैसे आएगा? टेक द रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लाई बाय द माइनस साइन. टेक द रेसिप्रोकल एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन. Slope of the normal at point P will be the negative reciprocal of slope of the tangent at point P. You have to remember these two formulas for finding the slope of tangent and normal. Then this is the formula: m is equal to dy by dx. Write down this formula: m is equal to dy by dx at point x1 y1. This is the slope of tangent, and the slope of normal m dash. Slope of the normal generally we denote m dash is equal to minus 1 upon dy by dx at point x1 y1. लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? dy by dx at point x1 y1 is not equal to 0. Then you have to find out the equation of tangent. For every problem you have to find out the equation of tangent. Then you have to remember this formula: equation of tangent at point p x1 y1 is given by y minus y1 is equal to m into the bracket x minus x1. लेकिन m क्या रहेगा? जो हम फंक्शंस देते हैं उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. एंड dy by dx एंड पॉइंट इज गिवन. dy by dx at point x1 y1 इज इनटू ब्रैकेट x माइनस x1. अगर मुझे नॉर्मल का करना है, सेकंड इक्वेशन, then equation of normal y minus y1 is equal to m dash x minus x1. What is m dash? M dash is equal to minus 1 upon dy by dx x1 y1. तो स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है. हाँ, अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट ऑन इट. देन राइट डाउन द फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट क्वेश्चन y is equal to x square plus 2 e raised to x plus 2 at point is given 0, 4. Y is equal to, first write down first question, 2.1. First question, y is equal to x square plus 2 e raised to x plus 2
तो यहाँ पे क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x, 2 ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव आएगा ई रेस टू एक्स। तो dy by dx इट इज नथिंग बट द स्लोप, dy by dx इट इज नथिंग बट द स्लोप। लेकिन स्लोप हमें फाइंड आउट करना है, m इज इक्वल टू क्या रहता है, dy by dx, dy by dx इट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन m एट पॉइंट 0,4 ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका मीनिंग क्या है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। तो m इज इक्वल टू x के जगह 0 सब्स्टिट्यूट करना है, 2 ई रेस टू 0, ई रेस टू 0 कितना आएगा 2, तो m का वैल्यू मुझे मिल गया 2। और क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हाँ, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1, अभी मैंने फार्मूला एक्सप्लेन किया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू द ब्रैकेट x माइनस x1। लेकिन y1 कितना है, y1 इज 4, m कितना है 2, x1 कितना है 0। तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 2x। तो ये जो है वो पूरा यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू द 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या आएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एम लिखना है, माइनस 1 बाय एम। टेक द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो y माइनस वाई वन कितना है, y1 इज 4 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, x माइनस x1 0 है। तो ये जो 2 है वो यहाँ पे शिफ्ट करना है, 2, 2y माइनस 8, 2y माइनस 8, 2y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो इक्वेशन क्या आएगा, x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ, अभी सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो जो इक्वेशन है, दिस इज अ इम्प्लिसिट फंक्शन, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, वाई क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3y स्क्वायर, और y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाय dx। और यहाँ पे xy है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँगा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं हम, डिवाइड बाय 3 करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे y है। हाँ, और ये जो 3 है वो 3 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 3 किया है और साइमल्टेनियसली मैं 3 ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे कितना आएगा, -3y, -3y इज इक्वल टू 0। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे देन चेंज द साइन ऑफ द ब्रैकेट, चेंज द साइन ऑफ ब्रैकेट। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 3x, वाई स्क्वायर माइनस 3x लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 3x, ब्रैकेट के बाहर dy बाई डी एक्स लिखेंगे,
और ये जो दोनों टर्म है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, 3y माइनस एक्स स्क्वायर। ये समझ में आता है कि देखो ये दोनों में से हम dy बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं, ये दोनों में से dy बाई डी एक्स कॉमन लेना है, तो वाई स्क्वायर माइनस 3x dy बाई डी एक्स, और 3y शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड, 3y आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स कितना रहेगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3x। हाँ, तो ये आंसर आ गया। दिस इज यम, dy बाई डी एक्स इट इज नथिंग बट द स्लोप, dy बाई डी एक्स इट इज नथिंग बट द स्लोप, मीन्स यम मिल गया एंड पॉइंट इज गिवन 2,4, तो स्लोप m एट 2,4, इसका मीनिंग क्या है, x के जगह 2 सब्स्टिट्यूट करना है और y के जगह 4 सब्स्टिट्यूट करना है, x के जगह 2 और y के जगह 4, 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 अपॉन 4 4 ज़ा 16 माइनस 6, 8 बाई 10, 8 बाई 10, हाँ 8 बाई 10 मीन्स 4 बाई 5, 4 बाई 5, ये टेंजेंट का स्लोप है, और m लिखेंगे, और m डैश जो है, m dash is a reciprocal of this is the slope of normal, ये जो है this is the normal का स्लोप, मैं डायरेक्ट लिखूंगा निगेटिव रेसिप्रोकल, और this is the slope of tangent, ये जो है टेंजेंट है, m इज इक्वल टू द ये टेंजेंट का स्लोप, और ये जो है नॉर्मल। अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आएगा, equation of tangent is y minus y1 is equal to m into bracket x minus x1, y minus y1 कितना है 2 and 4, तो y minus 4 is equal to m कितना है m m is 4 by 5, 4 by 5 x minus 2, x minus 2, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 5y माइनस 20 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, तो 4x माइनस 5y माइनस 8 प्लस 20, माइनस 8 प्लस 20 प्लस 12, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना रहेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 इज इक्वल टू m डैश लिखेंगे, m डैश x माइनस x1, नहीं तो फिर माइनस 1 बाई m भी लिख सकते हैं, y माइनस y1 कितना है 4 इज इक्वल टू निगेटिव रेसिप्रोकल 4 बाई 5 का माइनस 5 बाई 4 x माइनस 2, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4y माइनस 16 इज इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10, रीअरेंज करेंगे 5x प्लस 4y माइनस 26 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 10 अगर यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये इधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस लिखोगे, प्लस है, हाँ ये आंसर है 26, ये 26 है। हाँ, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है थर्ड प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम आ सकता है, अभी हम फिफ्थ प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ प्रॉब्लम, x sin 2y इज इक्वल टू y cos of 2x, x sin 2y
इज इक्वल टू एक्स साइन 2y इज इक्वल टू y cos ऑफ 2x, y cos ऑफ 2x। तो इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, u इंटू वी है, u इंटू वी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। साइन 2y का डेरिवेटिव आएगा cos 2y, फिर से 2y का डेरिवेटिव लेंगे 2 इंटू dy बाय dx। cos 2y, sin 2y का डेरिवेटिव आएगा cos 2y, फिर से 2y का डेरिवेटिव आएगा 2 dy बाय dx प्लस sin 2y इंटू वन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी u इंटू वी, लेकिन cos 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस साइन ऑफ 2x इंटू 2। तो ये जो माइनस साइन है वो ये माइनस साइन हम आउटसाइड लेंगे, प्लस y का डेरिवेटिव कितना आएगा dy बाई dx और इंटू कॉस ऑफ 2x एज इट इज, इंटू कॉस ऑफ 2x एज इट इज। तो dy बाई dx एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ये दोनों में से हम dy बाई dx कॉमन लेते हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो 2x cos 2y माइनस ये माइनस हो जाएगा माइनस cos ऑफ 2x ब्रैकेट में dy बाई dx लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन है और ये जो माइनस साइन 2y ये लेफ्ट, ये भी माइनस हो जाएगा 2y साइन ऑफ 2x माइनस साइन 2y। कंसेप्ट देखो ये समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन 2y का डेरिवेटिव आता है cos 2y, फिर से 2y का डेरिवेटिव आता है 2 dy बाई dx प्लस साइन 2y, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। यहाँ पे राइट हैंड साइड में फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, y इंटू cos 2x का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन ऑफ 2x इंटू 2, तो माइनस रहेगा, प्लस dy बाई dx मीन्स y का डेरिवेटिव आता है dy बाई dx इंटू कॉस 2x। तो रीअरेंज करेंगे, dy बाई dx एक ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ पे 2x cos y, ये दिस शिफ्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड माइनस cos 2x, और ये sin 2y राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो dy बाई dx कितना आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेते हैं 2y साइन ऑफ 2x माइनस साइन 2y अपॉन 2x cos 2y माइनस cos 2x। dy बाई dx इज इक्वल टू, ये आंसर आ जाएगा माइनस 2y साइन ऑफ 2x माइनस साइन ऑफ 2y अपॉन 2x cos 2y माइनस cos 2x। हाँ, लेकिन यहाँ पे स्लोप का वैल्यू, ये पॉइंट कितना है पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 2, m इज इक्वल टू स्लोप m एट पॉइंट पाई बाय 4 पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 2, पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 2। हाँ, तो m कितना आएगा, m इज इक्वल टू, यहाँ पे x के जगह पाई बाय 2 आएगा, मीन्स x के जगह पाई बाय 4 और y के जगह पाई बाय 2। यहाँ पे x के जगह पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू पाई बाय 4, लेकिन पाई बाय 2 आएगा। साइन 90 कितना है, साइन 90 1, साइन 90 1 टू, y का वैल्यू कितना है पाई बाय 2, पाई बाय 2, साइन 90 कितना है 1 माइनस, यहाँ पे साइन 90 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 मीन पाई बाय 2, साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1। ये सभी वैल्यूज पता होने चाहिए। 2x कितना है पाई बाय 4, हाँ, लेकिन पाई बाय 4 यहाँ पे लिखेंगे, cos 90 कितना है लेकिन 0, ये 0 आ जाएगा।
हाँ ये जीरो, कॉस ना जीरो, अरे जीरो, स्लोप जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो आएगा, डिनोमिनेटर में जीरो इट मींस स्लोप इज नॉट डिफाइंड, स्लोप इज नॉट डिफाइंड, माइनस यहाँ पे टू टू गेट कैंसल, पाई माइनस वन, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड, स्लोप ऑफ टेंजेंट is not defined, slope of tangent is not defined। यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे थोड़ा चेंज है, यहाँ पे क्या आएगा देखो, टू यहाँ पे पाई बाय फोर, यहाँ पे टू पाई बाय फोर, टू पाई बाय फोर मीन्स कितना आएगा पाई बाय टू, तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन टू इंटू पाई बाय सॉरी टू इंटू पाई बाय टू है तो ये कॉस पाई, हाँ यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा हियर, यहाँ पे जीरो राइट है, एक्स की जगह कितना है पाई बाय फोर, ये जीरो राइट है, लेकिन यहाँ पे टू इंटू पाई बाय टू है, कॉस पाई इज माइनस वन, कॉस पाई इज माइनस वन, हाँ तो हियर पाई बाय एक मिनट, साइन टू वाई, एक्स के जगह पाई बाय टू, मैंने दोनों जगह पाई बाय फोर सब्स्टिट्यूट किया है, एक्स के जगह पाई बाय फोर है और वाई के जगह पाई बाय टू है, एक्स के जगह पाई बाय फोर, टू पाई बाय फोर साइन 90, वाई कितना है पाई बाय टू, साइन 90 इज वन, और हियर वाई है, वाई कितना है पाई बाय टू, ये जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जीरो लिखना है, यहाँ पे जीरो लिखना है, और नीचे कितना आएगा टू पाई बाय फोर इंटू माइनस वन, टू पाई बाय फोर इंटू माइनस वन, हाँ तो यहाँ पे हम टू पाई बाय टू मीन्स हियर पाई, numerator contain pi and a denominator contain minus pi by 2, the answer is 2, answer is 2, slope of tangent is 2, slope of tangent m is equal to 2, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल m डैश लिखेंगे उसको माइनस वन बाय टू, तो इक्वेशन फाइंड आउट करो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला है, y माइनस वाई वन, y इज पाई बाय टू, y इज पाई बाय टू, y इज पाई बाय टू, m कितना है टू, x माइनस एक्स वन कितना है x1 पाई बाय फोर, x1 इज पाई बाय फोर, तो ये सॉल्व करना है, ये सॉल्व करेंगे, y माइनस पाई बाय टू इज इक्वल टू 2x माइनस पाई बाय टू, दोनों जगह पाई बाय टू है, कैंसिल हो जाएगा, पाई बाय टू कैंसिल, y इज इक्वल टू द 2x, ये टेंजेंट का इक्वेशन है, तो नॉर्मल का इक्वेशन सेम मेथड से फाइंड आउट करना है, यहाँ पे m के जगह मैं वन बाय टू लिखूंगा, y माइनस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस पाई बाय टू, y माइनस पाई बाय फोर इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू लिखना है, माइनस वन बाय टू एक्स माइनस पाई बाय फोर, हाँ टू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, टू वाई माइनस टू पाई बाय फोर, टू पाई बाय फोर मीन्स कितना होगा पाई बाय
टू इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई बाय 8, माइनस एक्स प्लस पाई बाय 8, तो ये यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू पाई बाय 8 प्लस पाई बाय 2। नॉर्मल का इक्वेशन कितना आएगा? नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, एक्स प्लस 2y नहीं, एक्स प्लस 2y, ये रीअरेंज करो ना, ये एलसीएम आएगा 8, 2 4 जो 5 पाई बाय 8, ये इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। यहाँ पे थोड़ा चेंज है, x के जगह कितना है, x कितना है, पाई बाय 2, x पाई बाय 2 है और y पाई बाय 4 है। हाँ ये राइट है, तो x के जगह पाई बाय 2 लिखना है, मीन्स सॉरी, y इज पाई बाय 2 और x इज पाई बाय 4, x इज पाई बाय 4। हाँ तो ये राइट है। यहाँ पे अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y 2y माइनस यहाँ पे पाई हो जाएगा, फिर अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस x माइनस माइनस बिकम प्लस, माइनस माइनस बिकम प्लस पाई बाय 4। तो ये x प्लस 2y पाई प्लस पाई बाय 4, पाई प्लस पाई बाय 4 कितना आएगा आंसर? पाई प्लस पाई बाय 4 इज 4 पाई प्लस पाई मीन्स 5 पाई बाय 4। अभी ये करेक्ट करना है सबको। हाँ अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू द रूट टी, वाई इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाय रूट टी एट टी इज इक्वल टू 4। तो x का डिफरेंशिएशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू t, dx बाई dt आएगा, dx बाई dt इज 1 बाय 2 रूट टी, dx बाई dt इज इक्वल टू 1 बाय 2 रूट टी। और dy बाई dt फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू t, t का डेरिवेटिव 1 आएगा और 1 बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव कैसे आएगा, 1 बाय रूट एक्स का माइनस 1 अपॉन 2x रूट एक्स ऐसा आएगा। नहीं तो फिर ये t टू माइनस 1 बाय 2 ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ 1 बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे माइनस 1 अपॉन 2x रूट एक्स, क्लियर, 2t रूट टी रूट टी, 1 बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस 1 बाय 2t, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाय 2t रूट टी। तो dy बाय dx कितना आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाई dt कितना है, 1 अपॉन 2t रूट टी अपॉन dx बाई dt कितना है, 1 बाय 2 रूट टी, 1 बाय 2 रूट टी। लेकिन t के जगह क्या लिखना है, 4, मैं स्लोप लिखूंगा, स्लोप मीन्स टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना आएगा, t के जगह 4 सब्स्टिट्यूट करो, 1 प्लस 1 अपॉन 2 4, 4 टू जा 8, लेकिन रूट 4 कितना आएगा, 2, 4 टू जा 8 टू जा 16, 1 बाय रूट 4 मीन्स 2, 1 बाय 8 आएगा, 1 बाय 8। एलसीएम लेना है 17 बाय 16 अपॉन 1 बाय 8, तो 8 न्यूमरेटर में जाएगा, 8 बाय 16 मीन्स 1 बाय 2, तो 17 बाय रूट 4, रूट 4 कितना आएगा, रूट 4 2 है क्या, हाँ 2,
और 2 4 लिखना है यहाँ पे। हाँ, तो 4 न्यूमरेटर में जाएगा, तो 4/16 कितना होगा? 4/16 1/4। हाँ, तो 17/4 आएगा, 17/4। हाँ, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया 17/4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना आएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। लेकिन हमें x और y फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? तो x इज इक्वल टू द रूट टी है, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा? √4 मीन्स 2 आएगा। और y का वैल्यू कितना आएगा? y का वैल्यू यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करो, 4 माइनस 1/2। तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 मीन्स 7/2। x कितना है? 2 और y कितना है? 7/2। तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। √4 इज 2 और t इज 4 माइनस 1/2 मीन्स 7/2। तो y माइनस y1 कितना है? ये सब्स्टिट्यूट करना है अच्छी तरह से। y माइनस 7/2 इज इक्वल टू m कितना है? 17/4। x माइनस x1 कितना है? x1 इज 2। तो ये सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट को, 4y माइनस 7/2 इंटू 4 होगा। ये जो 4 है वो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे पहले, तो 4y माइनस 7/2। तो ब्रैकेट में कितना आएगा? 17x 7/2 इंटू 4, ये 4 दोनों को मल्टीप्लाई होगा, 17x माइनस 34। 17x माइनस 4y माइनस 34। ये 4/2 मीन्स 2। हाँ, 4/2 इज 2, 7 2 जा 14, माइनस 14 उधर जाता है तो वो प्लस हो जाएगा। 17x माइनस 4y माइनस 34 प्लस 14। नहीं, माइनस 4y एज इट इज है वो। 17x माइनस 4y नो चेंज एज इट इज। माइनस 34, ये 34 है ना, और यहाँ पे कितना आएगा? 4/2 मीन्स 2, ये माइनस 14 माइनस 34, तो ये माइनस 20 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में ये 17/4 का रेसिप्रोकल आएगा, नीचे लिखना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ, तो y माइनस 7/2 इज इक्वल टू m का रेसिप्रोकल कितना आएगा? -4/17 x माइनस x1 कितना है? 2। तो ये 17 इधर शिफ्ट करो, 17y माइनस 119/2 इज इक्वल टू -4 शिफ्ट करना है, -4x माइनस माइनस प्लस 8, 2 से मल्टीप्लाई करना है सबको, 34y माइनस 119 इज इक्वल टू -8x मल्टीप्लाइंग बाई 2 टू ईच टर्म, तो 8x प्लस 34y ये शिफ्ट करना है इधर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।